الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وطر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اس نماز کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے۔ اس نماز کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور اس نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے، سفر میں بھی پڑھتے تھے۔ وطر کو سفر میں بھی ادا کرتے تھے۔ اسی طرح سے فجر کی 2 سنتیں، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑھتے تھے، چونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ وطر کو وطر اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ طاق نماز ہوتی ہے۔ وطر کی نماز یہ طاق ہوتی ہے، اس کا وطر کا جوڑا نہیں ہوتا، جیسا کہ 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، یہ سب بے جوڑ ہے، طاق کہا جاتا ہے۔ اور طاق کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں رمضان میں، خاص کر کے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق رات سے مراد یعنی وہ راتیں ہیں جو بے جوڑ ہیں، 21، 23، 25، 27، 29، یہ ہے۔ تو وطر کی نماز یہ بے جوڑ ہوتی ہے، طاق ہوتی ہے۔ یا تو آدمی 1 رکعت پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، اس حساب سے ہے۔ اس نماز کی اہمیت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد، نسائی وغیرہ کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوطر حق علی کل مسلم، کہ وطر یہ ہر مسلمان کے اوپر حق ہے۔ اب حق ہے، اس سے بہت سارے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ یہ وطر کی نماز یہ واجب ہے، اسی لیے اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں واجب الوطر، واجب الوطر اس کو گردانتے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ آیا وطر کی نماز یہ واجب ہے یا کیا ہے، اس کو ہم جانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی اہمیت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم وہی الوطر، کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد کی ہے ایک ایسی نماز کے ذریعے سے جو کہ سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے، اور یہ وطر کی نماز ہے۔ وطر کے ذریعے سے تمہاری مدد کی ہے۔ ان اللہ تعالی قد امدکم بصلاۃ وہی خیر لکم من حمر النعم۔ اب حمر النعم جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، کہ اگر آپ کے بتلانے سے ایک آدمی بھی اگر راہ راست پر ہدایت کی طرف آ جاتا ہے تو سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ گویا کہ یہ جو نماز ہے، اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ فضیلت کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ نماز کہ جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اس نماز کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ وطر یحب الوطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے۔ وطر کا مطلب اکیلا، اللہ رب العالمین کا کوئی ہمسر اور برابر نہیں ہے، اللہ رب العالمین تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے برابری میں کوئی نہیں ہے۔ تو وطر کی نماز چونکہ ہمیشہ یہ اکیلا ہوتی ہے، یعنی بے جوڑ ہوتی ہے، طاق ہوتی ہے، تو اس نماز کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث ترمذی، ابو داؤد وغیرہ کے اندر ہے۔ وطر کی جو نماز ہے، یہ نماز آیا سنت ہے یا یہ واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وطر کی نماز یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ لوگ اس کو واجب الوطر سمجھتے ہیں، اور جمہور علماء کے ہاں یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سے لاپرواہی برتے اور اس کو اہمیت نہ دے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، بلکہ اس نماز کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر طلحہ بن عبید اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں، تمہارے اوپر جو ضروری ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حل علی غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی ہے میرے اوپر جو ضروری نماز ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں تو نفلی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ضروری یہ 5 نمازیں ہیں، جو 5 نمازیں ہیں دن و رات میں نا، یہ 5 نمازیں تمہارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب نفل ہے، الا ان تطوع۔
फिर उसने पूछा रोज़े के बारे में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के रोज़े के बारे में बतलाया कि ये फ़र्ज़ है। फिर ज़कात के बारे में उसने पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। फिर वो जाने लगा और जब मुड़ा तो उसने कहा कि अल्लाह की कसम, न तो मैं इसे ज़्यादा करूँगा और न मैं कम करूँगा, ला अनकुसु अला हादा वला अज़ीद, न तो मैं इसे कम करूँगा और न ज़्यादा करूँगा, इसी पर मैं अमल पैरा रहूँगा, जो फ़र्ज़ है ना उसको मैं अदा करूँगा पाबंदी के साथ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ अफ़लह इन सदक़, अफ़लह इन सदक़, कि ये कामयाब हो गया अगर ये सच कहा है तो। यानी इस पर अगर ये अमल पैरा हो जाता है, इसको आदमी अपना लेता है, फ़राइज़ की अदायगी करता है, तो उसकी कामयाबी के लिए काफ़ी कामयाब हो जाएगा। हाँ, मज़ीद के लिए आदमी नवाफिल का अहतमाम करे, ये क़ुर्बती का और ज़रिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ उसे ये नहीं कहा कि नहीं तुम्हारे ऊपर इन 5 नमाज़ों के अलावा ये भी नमाज वितर की नमाज है, ये भी वाजिब या ज़रूरी है, ऐसा नहीं कहा। आपने कहा कि 5 नमाजें। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन भेज रहे थे, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि ये आखिरी दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में भेज रहे थे, इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलविदा करने के लिए जब गए मुआज़ को, तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हो सकता है कि जब तुम वापस आओ तो मेरी मुलाकात तुमसे ना हो पाए और तू मेरी कब्र से गुजरो। तो वहाँ मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने भी लगे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज़ को यमन भेज रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू अहले किताब के पास जा रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे वहाँ पहुँच करके? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की वहदानियत की तरफ बुलाना और मेरी रिसालत की तरफ, यानी मैं अल्लाह का रसूल हूँ ये मान ले, अल्लाह की वहदानियत को इकरार कर ले, मेरी रिसालत को मान ले। जब ये मान ले, इस्लाम में आ जाए, तो उसको कहना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिन और रात में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज़ की है, 5 नमाजें फ़र्ज़ की है। और जब नमाज पढ़ने लग जाए तब कहना कि इनके जो मालदार है, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, वो ज़कात दे और उनके जो गरबा और फ़क़रा होंगे उन्हीं पे इस माल को तकसीम किया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ मुआज़ से नहीं कहा कि उनको बताना कि इन 5 नमाज़ों के अलावा भी और नमाज फ़र्ज़ है, नहीं बतलाया। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सही बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में भी होते तो आप सफ़र में जैसे सवारी पे आप नफिल नमाज़ पढ़ते, नफिल नमाज सवारी पे जायज़ है। हाँ, फ़र्ज़ नमाज है कि फ़र्ज़ नमाज के लिए क़ियाम या शर्त है, अगर क़ियाम फ़ौत हो जाए तो नमाज नहीं होगी, इल्ला है कि आदमी अगर मजबूर है, लाचार है या इज़्तिरारी हालत में है तो अलग बात है, वरना क़ियाम फ़र्ज़ नमाज के लिए ये रुकन है, रुकन अगर फ़ौत हो जाए तो नमाज नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, बादब खड़े हो जाओ अल्लाह के सामने, तो फ़र्ज़ नमाज के लिए। और जैसा कि सही बुखारी के अंदर इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बवासीर की बीमारी के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सल्ले क़ाइमा फ़इन लम तस्तति फ़क़ाइदा फ़इन लम तस्तति फ़अला जंब, कि खड़े होकर नमाज पढ़ो, खड़े होने की ताकत ना हो तो बैठ करके पढ़ो, और बैठने की ताकत ना हो तो पालू के बाद लेट करके नमाज पढ़ो। तो क़ियाम फ़र्ज़ नमाज के लिए ज़रूरी है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर नफिल नमाज पढ़ते और वितर भी सवारी पर पढ़ते, वितर भी सवारी पर पढ़ते थे। इसी तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, सुनन निसाई वगैरह के अंदर हदीस है जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं वितर के सिलसिले में कि अलवित्रो लैसा बिहत्मिन कहय्यतिल मकतूबा वलाकिन्नहु सुन्नतुन सन्नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के वितर की नमाज ये फ़र्ज़ नमाजों की तरह नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, ये वाजिब नहीं, ये लाजिम नहीं है। अलवित्रो लैसा बिहत्मिन कहय्यतिल मकतूबा, यानी कहय्यतिल मकतूबा, यानी फ़र्ज़ नमाजों की तरह, जिस तरह फ़र्ज़ नमाज मकतूब है ना, ज़रूरी है ना, नहीं पढ़ेगा आदमी तो गुनाहगार होगा, तो वितर की नमाज इस तरह से फ़र्ज़ नहीं है। वलाकिन्नहु सुन्नतुन सन्नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ हज़रत अली ने फरमाया कि ये सुन्नत है जिसकी बुनियाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको मुकर्रर फरमाया है, तो ये जो नमाज है ये सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा है, और आदमी को इसे नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी रात में जब सोए और सो कर के मान ले कि रात में जागने का इरादा हो तो तहज्जुद को क्या नाम है वितर को मुअख्खर कर दे, नहीं तो रात में जागने का इरादा ना हो तो आदमी पढ़ करके सोए। जैसा कि सही बुखारी के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस वो बयान करते हैं कि औसानी खलीली बिसलास, कि मेरे खलील ने, मेरे दोस्त ने 3 चीज़ों की मुझे वसीयत की कि मैं इसे मरते दम तक न छोड़ूं,
یعنی نہ چھوڑنے کی آپ نے وصیت کی کہ ان کاموں کو مت چھوڑنا، اس کو کرنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 روزے ہر مہینے 3 روزے، اس طرح سے اگر 3 روزے اگر آدمی رکھتا ہے ہر مہینے تو گویا کہ ثواب کے اعتبار سے پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اب اس طرح سے اگر ہر مہینہ آدمی رکھتا ہے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ہر سال ایسا کرتا ہے تو گویا کہ پوری زندگی اس نے روزہ رکھا۔ تو یہ فضیلت ہے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی وصیت کی کہ چاشت کی نماز پڑھنا۔ اور تیسری چیز النوم علی وتر، کہ وتر پڑھ کر کے سونا۔ وتر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہ وتر ضرور پڑھنا، لیکن ضرور پڑھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وتر کی نماز یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ہاں احناف کے ہاں البتہ یہ واجب ہے، ان کے ہاں یہ وتر واجب مانا جاتا ہے۔ وتر کی جو نماز ہے یہ واجب سمجھ کر کے لوگ پڑھتے ہیں کہ یہ واجب ہے، جبکہ جمہور علماء کے ہاں یہ وتر کی نماز یہ سنت موقدہ ہے، اگر پڑھتا ہے آدمی تو ثواب ملے گا، ہاں پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ وتر کا جو وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری حصہ تک، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک ہے، کیونکہ یہ رات کی آخری نماز ہے۔ وتر کی نماز رات کی آخری نماز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو وتر کی نماز یہ رات کی آخری نماز ہے، انتم نماز ہے، لاسٹ نماز ہے۔ اس سے پہلے جو بھی نفل آدمی پڑھنا چاہے وہ پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ میں آخر میں وتر کی نماز پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ عشاء کے بعد سے لے کر، یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نماز ہے وتر یہ عشاء کے ساتھ ہے، تو عشاء کے ساتھ نہیں، یہ رات کی نماز ہے، بلکہ اس کو کہا لیا جائے کہ یہ تہجد کے ساتھ ہے تو وہ چلے گا، کیونکہ یہ رات کی آخری نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ الوتر جعلہ اللہ لکم فیما بین صلاۃ العشاء الی ان یطلع الفجر، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو نماز ہے، نماز وتر ہے، اس کا وقت عشاء کی نماز سے لے کر کے طلوع فجر تک بتلایا ہے، یعنی مقرر کیا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے فجر طلوع ہونے تک، فجر صادق طلوع ہونے تک یہ اس کا وقت ہے۔ اس وقت میں آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرماتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے ہیں، یہاں تک کہ آپ آخری حصے میں بھی لے گئے، آخری حصے تک آپ نے وتر کی نماز پڑھی، یعنی آخری ٹائم میں بھی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کروایا تو ایک رات ایسا ہوا کہ صحابہ کو خوف ہوا کہ اب سحری بھی چھوٹ جائے گی، اس طرح سے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ کل لیلہ اوتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتہا وترہ الی السحر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں وتر پڑھے، ہر حصے میں، اور آپ کے وتر کے انتہا یہ صبح تک ہوتی تھی، صبح تک۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص رات کے آخری حصہ میں جاگنے سے ڈرتا ہو، یعنی جاگ نہ ہونے کا خطرہ اور خوف ہو کہ نہیں جاگ پاؤں گا، تو رات کے پہلے حصہ میں آدمی پڑھ لے، لیکن جاگنے کا ارادہ ہو تو آخری حصہ میں نماز پڑھیے، وتر کو آخری نماز بنائیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے یہ بیان کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، کہ جو آخری حصہ میں جاگنے سے ڈرتا ہو تو پہلے حصہ میں وتر کی نماز پڑھ لے۔ ومن طمع یقوم آخرہ، اور جس کی چاہت ہو، خواہش ہو کہ وہ آخری رات میں جاگے گا، آخری حصہ میں، رات کے آخری حصہ میں جاگے گا، قیام اللیل کے لیے جاگے گا یا وتر کے لیے جاگ سکے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیوتر آخر اللیل، تو آخری حصے میں، رات کے آخری حصے میں آدمی وتر کی نماز پڑھے۔ فإن صلاۃ آخر اللیل مشہودہ، اس لیے کہ اس وقت کی جو نماز ہے اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وذالک افضل، اور آپ نے فرمایا کہ یہ افضل ہے۔ تو آخری وقت میں آدمی کو رات کے آخری حصہ میں وتر کی نماز پڑھنے کو آیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، کہ رات کے آخری نماز وتر کو بناؤ، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ وتر کا وقت ہے، وتر کا وقت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر کے بیچ میں آدمی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے۔ وتر کی جو نماز ہے اس کے رکعات کے سلسلے میں
مختلف حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ وطر کی جو تعداد ہے وہ مختلف ہے. 1 کا بھی ذکر ملتا ہے، 3 کا بھی ذکر ملتا ہے، 5 کا بھی، 7 کا بھی، 9 کا بھی ذکر ملتا ہے. مختلف روایتوں سے ثابت ہے، اور یہ سب صحیح روایتوں سے ثابت ہے. آدمی کو جو میسر ہو، جس حساب سے میسر ہو وہ پڑھے. ہاں اگر یہ ممکن ہو کہ کبھی اس پر عمل کر لے کبھی اس پر عمل کر لے تو ایسا کرے. لیکن ایک ہی عدد خاص نہیں ہے، مختلف تعداد ہے. یعنی 1 کا بھی ذکر ہے. اب بہت سارے لوگ تو 1 رکعت وتر کو مانتے ہی نہیں، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثیں بھی ہے، فعلی حدیثیں بھی ثابت ہے 1 رکعت وتر ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ 1 رکعت وتر کیسے پڑھیں گے؟ 3 رکعت کے قائل ہیں. اس کے بعد بھی اور بھی تعداد ہے، 5 بھی ثابت ہے، 7 بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا، 9 بھی ثابت ہے. تو وتر کی جو تعداد ہے وہ مختلف ہے، اور طریقے بھی مختلف ہیں، مختلف طریقے بھی ہیں. 1 رکعت وتر پڑھنے کے سلسلے میں جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا رات کی نماز کے بارے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعۃ واحدہ توتر له ما قد صلی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 ہے، 2 کر کے پڑھو، اور جب کسی کو صبح ہونے کا خطرہ ہو تو 1 رکعت وتر بنائے. یہ پہلے ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی. یہ وتر ساری نمازوں کو، یہ جو وتر کی نماز ہے ساری نمازوں کو طاق بنا دے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا تو کہ 2 کر کے پڑھو، رات کی نماز یہ 2 کر کے ہے، اور جب صبح ہونے کا خطرہ ہو تو وہاں 1 رکعت وتر پڑھ لے. یہ بالکل واضح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت کے بارے میں فرمایا ہے. اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، الوتر رکعۃ من آخر اللیل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وتر 1 رکعت ہے اور رات کے آخری حصہ میں. الوتر رکعۃ من آخر اللیل، رات کے آخری حصہ میں 1 رکعت وتر ہے. 1 رکعت وتر یہاں بھی ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے جب فارغ ہوتے، جس کو لوگ عتمہ کہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے. 11 رکعت پڑھتے تھے. 11 رکعہ یسلم بین کل رکعتین، ہر 2 رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے. ویوتر بواحدہ، اور 1 رکعت سے آپ وتر کرتے تھے. 1 رکعت سے آپ وتر کرتے تھے. یہ سب جو روایت ہے یہ کس بات پر دال ہے کہ 1 رکعت وتر نہیں ہے. 1 رکعت وتر بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی ثابت ہے اور فعل سے بھی ثابت ہے. اسی طرح سے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کے بارے میں فرمایا الوتر حق، کہ وتر یہ حق ہے، وتر کی نماز یہ حق ہے. لیکن حق سے مراد وضاحت کیا گیا ہے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، سنت موقعہ ہے. آدمی کو وتر پڑھنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوتر حق فمن احب ان یوتر بخمس فلیفعل، وتر یہ حق ہے تو جو 5 رکعت وتر کرنے کو پسند کرتا ہو 5 رکعت کرے، یعنی 5 رکعت پڑھے. ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل، جو 3 رکعت پڑھنے کو پسند کرتا ہو وہ 3 رکعت پڑھے. ومن احب ان یوتر بواحدہ فلیفعل، جو 1 رکعت پڑھنا چاہے وہ 1 رکعت پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ 1 رکعت بھی وتر کی نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 کر کے پڑھتے اور پھر لاسٹ میں 1 رکعت پڑھتے تھے. اسی طرح سے صحابہ سے بھی عمل ثابت ہے، صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے 1 رکعت وتر پڑھتے تھے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ، عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا معاویہ کے بارے میں کہ 1 رکعت پڑھتے ہیں، تو اس نے کہا کہ چھوڑ دو، وہ فقیہ ہیں. یا آتا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں. تو 1 رکعت وتر پہ بہت دلائل ہے. 1 رکعت وتر بھی یہ ثابت ہے، جس حساب سے آدمی کو آسانی ہو اس حساب سے پڑھے. 3 رکعت وتر کے سلسلے میں کہ 3 رکعت وتر کیسے پڑھیں گے، اس کا طریقہ کیا ہے. 3 رکعت وتر کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے مشابہ وتر کی نماز مت پڑھو. اب بہت سارے لوگ مغرب کے مشابہ وتر کی نماز پڑھتے ہیں. ابن حبان وغیرہ کے اندر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بثلاث ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب، کہ وتر کی نماز اس طرح سے مت پڑھو کہ مغرب کے مشابہ ہو. اور مغرب کے مشابہ نہ ہونے کے لیے
अब लोग मगरिब की मुशाबे ही नमाज पढ़ते हैं, 3 रकत जो पढ़ते हैं बहुत सारे, तो मगरिब के मुशाबे की 2 रकत पढ़ करके तशहुद करते हैं और फिर 1 रकत के लिए खड़े होते हैं। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब के मुशाबे नमाज पढ़ने से मना किया है। मगरिब के मुशाबे वितर की नमाज न होने के 2 तरीके हो सकते हैं, या इसकी 2 शक्लें बन सकती हैं। ये एक शक्ल तो ये है कि आदमी 2 रकत पढ़े, 2 रकत पढ़ करके सलाम फेर दे, फिर 1 रकत वितर की नमाज पढ़े, यानी ये भी तीनों ही वितर है, लेकिन 2 रकत पढ़ करके सलाम फेर दे, फिर 1 रकत के लिए आदमी खड़ा हो। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रात की नमाज के बारे में आपने फरमाया कि 2-2 करके हैं, और फिर लास्ट में 1 रकत नमाज पढ़ लो अगर खौफ हो तो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी बयान फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकत पढ़ते, लास्ट में 1 रकत वितर पढ़ते थे, 1 रकत इस तरह से तना यानी अकेला पढ़ते थे। तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर हज़रत आयशा और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से या अन्हुम से ये सब साबित है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की नमाज़ पढ़ते तो ताक और जुफ्त के दरमियान ये फ़र्क करते थे, 2 रकत पढ़ करके सलाम फेरते और फिर 1 रकत पढ़ते। अब्दुल्लाह इब्न उमर से भी ऐसे साबित है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से भी ऐसे ही साबित है। तो ये 3 रकत वितर में, और ये अफजल तरीक़ा है, ये अफजल तरीक़ा इसको कहा जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर से इसी तरह से पढ़ा करते थे कि 2-2 करके पढ़ते और लास्ट में 1 रकत पढ़ते। तो 2-3 रकत अगर कोई वितर की नमाज पढ़ता है तो 2 रकत पढ़ करके आदमी सलाम फेर दे और फिर 1 रकत पढ़े, और ये तीनों वितर मानी जाएगी, तीनों रकत ये वितर की नमाज होगी। और दूसरी शक्ल, दूसरा तरीका 3 रकत वितर पढ़ने का ये है, और मगरिब से मुशाबे न होने से इस तरह से बचाया जा सकता है कि आदमी 3 रकात मुसलसल पढ़े, बीच में तशहुद के लिए ना बैठे। जिस तरह के मगरिब के लिए बीच में 2 रकत के बाद तशहुद के लिए बैठा जाता है, 3 रकत के बाद ही वो लास्ट में तशहुद के लिए बैठे। जैसा कि सुनन निसाई के अंदर उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकत में कुल सूरा आला सब्बिह इस्म रब्बिकल आला पढ़ते थे, और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफिरून, और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद, और आखिरी में ही सलाम फेरते थे। तो 3 रकत वितर के बारे में कि अगर आदमी 2 रकत पढ़ करके सलाम फेर देता है, फिर 1 रकत पढ़े, या 3 रकत मुसलसल पढ़ता है तो 1 तशहुद से, 2 तशहुद नहीं, 1 ही तशहुद से लास्ट में 3 रकत मुकम्मल करने के बाद वो तशहुद के लिए बैठेगा, और फिर वहाँ दुआ तशहुद जो भी है ये सब तशहुद दुरूद दुआ वगैरह करके आदमी सलाम फेरेगा। ये 3 रकत वितर का तरीका है। लेकिन मगरिब के मुशाबे ये नमाज साबित नहीं है, ये सही नहीं है कि 2 रकत पढ़ने के बाद आदमी तशहुद करे, फिर तशहुद करने के बाद तीसरी रकत के लिए खड़ा हो और जा करके वहाँ फिर तीसरी रकत पढ़ करके फिर पढ़े, तो ये सही नहीं है। 5 रकत वितर के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 5 रकत भी वितर साबित है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकत वितर पढ़ते और लास्ट में सलाम के लिए बैठते, वहाँ दुआ पढ़ करके आप सलाम फेरते, लास्ट ही में बैठते थे। 5 रकत पढ़ने के बाद ही मुसलसल, बीच में आप नहीं बैठते, लास्ट में जा करके बैठते थे। 5 रकत जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर पढ़ते थे तो सिर्फ आखिर में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते थे। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला, और ये भी हदीस है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल 13 रकअत, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में 13 रकत पढ़ते थे। 13 रकत यूतिरू मिन ज़ालिका बिखम्स, 5 रकत आपकी वितर की नमाज हुआ करती, 5 रकत वितर होती। ला यजलिसु फी शैइन इल्ला फी आखिरिहिन, यानी वितर जब पढ़ते तो आखिर में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। इसी तरह से अबू अय्यूब ये रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 रकत के बारे में कि जो ये पसंद करता है कि 5 रकत पढ़े तो वो 5 रकत पढ़ ले, यानी अल वित्र हक़ुन, वितर हक़ है। 5 रकत पढ़ने को पसंद करता हो 5 रकत पढ़े, 3 रकत पढ़ने को पसंद करता हो तो 3 रकत पढ़े, और जो 1 रकत पढ़ने को पसंद करता हो 1 रकत पढ़े। तो 5 रकत पढ़ने का जो तरीका है कि लास्ट में बैठे, लास्ट में, जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये साबित है। 7 रकत के सिलसिले में कि 7 रकत जब
वितर की नमाज पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? तो इस सिलसिले में 2 तरह की रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है। एक तरीका तो ये है कि 7 रकत पढ़ने के बाद ही लास्ट में आखिर में ही तशहुद करे, दुआ वगैरह बीच में नहीं बैठे। या दूसरी रिवायत के हिसाब से कि 6ठी रकत पर तशहुद करे और फिर 7वीं रकत के लिए खड़े हो जाए, वहाँ 7वीं रकत के लिए खड़े हो जाए और फिर दुआ सलाम करके सलाम फेरे। ये 2 तरीके हैं 7 रकत वितर के। और 9 रकत वितर के बारे में जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हदीस हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जब पूछा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वितर की नमाज के बारे में फरमाती है कि 9 रकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो 8वीं रकत पर आप बैठते थे। 8 रकत पढ़ने के बाद आप वहाँ दुआ करते, जिक्र करते और अल्लाह की तारीफ़ करते और फिर इसी तरह से दुआ करते, फिर 9वीं रकत के लिए आप खड़े होते। 9वीं रकत मुकम्मल करने के बाद फिर आप बैठते और वहाँ जिक्र और अल्लाह की तारीफ़ और फिर इसी तरह से दुआ कर करके आप सलाम फेरते। तो ये वितर की जो तादाद है, जो रकात है, ये पढ़ने के तरीके हैं। और इसकी जो तादाद है वो है कि वितर की जो रकात है, वितर नमाज की जो रकात है वो मुख्तलिफ है और तरीक़े भी बाज़ में मुख्तलिफ है। इस हिसाब से आदमी जो भी इनमें से पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। बेहतर है कि कभी इस पर अमल कर ले, कभी उस पर अमल कर ले, ताकि सारी हदीसों पर अमल हो जाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे तरीक़े के हिसाब से उसको सवाब मिले। वितर नमाज के सिलसिले में कि वितर की जो ये नमाज है, वितर नमाज में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते क्या थे? वितर की जो नमाज है इसमें आप क़िराअत क्या करते थे? तो जैसा कि सुनन नसाई के अंदर उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की पहली रकत में सूरह आला पढ़ते थे, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, और दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफ़िरून, और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाह पढ़ते थे। लेकिन इसके अलावा अगर आदमी को याद हो कोई और आगे पढ़ता या दूसरी सूरत पढ़ना चाहता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई हर्ज की बात नहीं है। मुस्तहब है ये कि पहली रकत में सूरह आला, दूसरी रकत में कुल या अय्युहल काफ़िरून और तीसरी रकत में कुल हुवल्लाह पढ़े। और ये सब इसलिए बताया जाता है ताकि आदमी सुन्नत पर अमल करे, सुन्नत के हिसाब से उसको, सुन्नत के इत्तिबा में उसको सवाब मिले, सुन्नत की पैरवी में उसको सवाब मिले। तो ये सब सुन्नत है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िराअत के बाद यानी 3 रकत जब वितर पढ़ते या 1 रकत वितर पढ़ते, 5 रकत वितर पढ़ते, तो लास्ट में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद, जैसा कि उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस जो सुनन नसाई के अंदर है उसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबे कहते और आखिरी मरतबा यानी तीसरी मरतबा में कुछ आवाज़ को लंबा करके खींचते, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। इस हिसाब से ये भी एक दो जिक्र है। वितर नमाज पढ़ने के बाद ये एक जिक्र है कि ये आदमी वितर की नमाज के बाद करे। वितर के सिलसिले में कि कुनूत, ये कुनूत वितर के बारे में, ये कुनूत आदमी कर लेता है तो भी वितर की नमाज हो जाएगी, नहीं करता है तो भी वितर की नमाज हो जाएगी। ये कुनूत करना, दुआ पढ़ना ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है, और न तो वितर की नमाज ज़रूरी है। वितर की नमाज भी ज़रूरी नहीं है, जैसा कि जिक्र किया गया कि ये वितर की नमाज ये सुन्नत मुअक्कदा है। कुनूत के सिलसिले में एक तो होता है कुनूत वितर और दूसरा होता है कुनूत नाज़िला। कुनूत नाज़िला कि कोई मुसीबत, कोई परेशानी आ जाए तो उसे टालने के लिए, दूर करने के लिए अल्लाह से जो दुआ की जाती है उसको कुनूत नाज़िला कहा जाता है। कोई भी मुसीबत आ जाए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रेल, ज़कवान और उसैया फला फला कबीले के लोग आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 70 सहाबा को ले जा करके कत्ल कर दिए। उसमें एक बच पाए थे तो कत्ल कर दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल 1 महीने तक बदुआ करते रहे, 1 महीने तक। और कब बदुआ करते रहे? रुकू के बाद। तो कुनूत नाज़िला में मौका और महल के हिसाब से आदमी दुआ करेगा, जो दुआ मुनासिब हो वो दुआ आदमी करेगा। और कुनूत वितर में भी आदमी दुआ कर सकता है, लेकिन कुनूत वितर के हवाले से जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआ साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन को जिस दुआ की तालीम दी, अल्लाहुम्मा हदीनी फीमन हदैत वआफ़िनी फीमन आफ़ैत वतवल्लनी फीमन तवल्लैत वबारिक ली फीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वलैत वला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआला। ये दुआ है, ये दुआ आदमी पढ़े। ये दुआ पढ़ना ये मुस्तहब आदमी पढ़ लेता है तो कभी पढ़े कभी ना पढ़े, क्योंकि दवाम के साथ ऐसा साबित नहीं है। तो कुनूत वितर में हाथ उठाने के बारे में कि हाथ उठाना है या नहीं उठाना है। अब बहुत सारे लोग हाथ उठाए बगैर दुआ नहीं करते,
तो ये कुनूत वित्र यानी दुआ अगर कोई आदमी करे तो चाहे क़याम के हालत में ही कर ले या चाहे हाथ छोड़ करके कर ले, दुआ पढ़ ले, कोई बात नहीं। दुआ के लिए हाथ उठाना ये ज़रूरी नहीं है। ये बात सहाबा से आता है, जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद वगैरह ये कुनूत वित्र में हाथ उठाते थे। तो कुनूत नाज़िला में जो दुआ पढ़ने का या दुआ करने का जो जिक्र मिलता है वो रुकू के बाद है, लेकिन कुनूत वित्र में उलमा का इख्तिलाफ है कि कुनूत वित्र में जब हम दुआ पढ़ेंगे तो रुकू में जाने से पहले करेंगे या रुकू से उठने के बाद करेंगे। यहाँ उलमा के यहाँ इख्तिलाफ है, और जो मैं समझता हूँ वो है कि यानी इख्तिलाफ है उलमा के यहाँ। बहुत सारे उलमा हैं जो कहते हैं, क़यास करते हैं कुनूत नाज़िला पे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनूत नाज़िला में रुकू के बाद दुआ करते थे। तो इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसी पर क़यास करते हुए कि दुआ जो है कुनूत नाज़िला में जिस तरह से रुकू के बाद है तो कुनूत वित्र में भी यही है, जबकि दीगर और सहाबा वगैरह से अब्दुल्ला इब्न मसूद वगैरह से है कि रुकू से पहले, और यही ज़्यादा राजे है कि रुकू में जाने से पहले कुनूत वित्र की जो दुआ है वो आदमी कर ले। और दुआ में हाथ उठाए ना उठाए या क़याम ही के हालत में आदमी कर लेता है, कोई मसला नहीं। हाथ बदे बदे भी पढ़ लेता है तो भी मजाल मफ्तू है अगर दुआ करना चाहता है तो। ये कुनूत वित्र में दुआ का मसला है कि बेहतर और अफजल है कि रुकू से पहले कर ले, लेकिन अगर कोई रुकू के बाद भी करता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, जैसा कि बहुत सारे उलमा इस सिलसिले में दलाइल जिक्र करते हैं। वितर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं है। हाँ, 2 रकत पढ़ने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आता है, लेकिन अगर कोई शख्स वितर पढ़ चुका है या रात के पहले हिस्सा में वितर पढ़ लिया है, अब रात के आखिरी हिस्सा में उसकी आँख खुल रही है, अब वो नमाज पढ़ना चाहता है तो क्या पढ़ सकता है? तो पढ़ सकता है, आदमी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ ये जहन में बात रखे कि एक रात में 2 मरतबा वितर नहीं है, एक रात में 2 वितर नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वितर पढ़ लिए हैं तो आप जब जाग जाते हैं तो 1 रकत वितर पढ़ के उसको जोड़ा बनाते हैं और फिर जाकर के फिर नफिल नमाज पढ़ते हैं या क़यामुल लैल करते हैं और फिर लास्ट में जाकर के वितर पढ़ते हैं। तो ये ऐसा साबित नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ला वितरान फी लैलतिन वाहिदा, एक रात में 2 वितर नहीं है, एक रात में 2 वितर नहीं है। तो वितर अगर पहले पढ़ लिया है और अब रात में जाग गया है, पढ़ना चाहता है नमाज, पढ़ सकता है। वितर की नमाज अगर छूट जाए, कोई रात में अगर नहीं पढ़ पाए, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए, तो क्या फजर के टाइम में पढ़ सकता है, या फजर में नहीं पढ़ पाया है क्या दिन में पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। तो वितर की नमाज की क़ज़ा के सिलसिले में उलमा के यहाँ इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि ये रात की नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जालू आखिर सलातिकुम बिल्लैल वितरा, कि रात की आखिरी नमाज बनाओ। अब वितर को रात की आखिरी नमाज बनाओ, और वितर की नमाज ये रात की आखिरी नमाज है, तो वितर अगर क़ज़ा हो जाए रात में तो क्या दिन में इसको पढ़ेंगे? तो बहुत सारे उलमा हैं जो कहते हैं कि क़ज़ा नहीं है, क्योंकि ये रात की नमाज है, रात का वक्त निकल गया, आप दिन में नहीं पढ़ेगा। जबकि कुछ उलमा है जो कहते हैं कि अगर कोई करना चाहे, हाँ रात में मान ले कि फजर की अजान हो गई है, उस वक्त अगर टाइम है तो आदमी पढ़ सकता है, जैसा कि बात सहाबा से इसके बारे में आता है, तो इस हिसाब से वहाँ पढ़ सकता है। लेकिन दिन में अगर पढ़ेगा तो ताक नहीं, जुफ्त करके पढ़ेगा, जुफ्त करके पढ़ेगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन नाम अन वित्रिही औ नसियहु फलियुसल्लिही इज़ा ज़करहु। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर है और ये हदीस सही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नाम अन वित्रिही औ नसियह, कि जो अपने वितर से सो जाए, यानी वितर न पढ़ सका हो, वितर न पढ़ पाया हो, सो गया हो या भूल गया हो, तो जब याद आए तो वो पढ़ ले, जब याद आए तो पढ़ ले। इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ उलमा है जो कहते हैं कि वितर की क़ज़ा आदमी कर सकता है, अगर वितर की नमाज छूट गई हो तो इस रिवायत की बुनियाद पर कर सकता है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाते या जाग नहीं पाते किसी वजह से, तो उसके बारे में है कि मन नाम अन हिस्बिही औ अन शैइन मिन्हु फ़क़रअहु फ़ी मा बैन सलातिल फ़ज्रि व सलाति ज़ुहरि कुतिबा लहु कअन्नमा क़रअहु मिनल लैल। और ये जो हदीस है, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर यानी जिस शख्स का रात का कोई मान लें कि जिक्र अज़कार या दुआ या विर्द रह गया हो और या भूल गया हो कोई चीज़ या सो गया हो, सोने की वजह से वो नहीं कर सका हो, तो फजर
बाद से लेकर ज़ोहर के बीच में अगर कर लेता है तो उसको वैसे ही सवाब मिलेगा जैसा कि उसने उसी टाइम में किया है। यानी रात का अगर विर्द था तो रात ही में किया है, या जिस हिसाब से, तो इस हिसाब से इससे भी पता चलता है कि अगर रह जाए आदमी का कोई विर्द रह गया है अगर, या भूल गया था, तो वो कर सकता है, ज़ोहर तक में कर सकता है। हाँ, इतना है कि जैसा कि सही मुस्लिम के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सो जाते किसी वजह से या बीमारी की वजह से जाग नहीं पाते, तो दिन में जब पढ़ते तो आप 12 रकात पढ़ते थे, 12 रकात। इज़ा नाम मिन लैल औ मरीद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात में सो जाते, जाग नहीं पाते या आँख नहीं खुलती या बीमार होते, सल्ला मिन नहारे सिंतई अशरत रका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रकात पढ़ते थे, 12 रकात। यानी गोया कि अगर कोई आदमी 3 रकात वितर पढ़ता था तो 4 पढ़ेगा, 5 पढ़ता था तो 6 पढ़ेगा, 7 पढ़ता था तो 8 पढ़ेगा, या तहज्जुद के साथ में अगर इस हिसाब से है तो जोड़ा बना करके वहाँ पढ़ेगा, ताक नहीं पड़ेगा, वहाँ 11 नहीं पड़ेगा या 7 नहीं पड़ेगा, 9 नहीं पड़ेगा, बल्कि जोड़ा बनाएगा। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़ते तो इस हिसाब से जोड़ा बना करके पढ़ते थे। तो ये वितिर के हवाले से चंद बातें थी, और वितिर की जो नमाज है, इस नमाज के बारे में कि इसको अहमियत देनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसको अहमियत नहीं देते हैं, हालांकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़र्रुब का एक बहुत बेहतर ज़रिया और बेहतर रास्ता है।